ایران معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو دوبارہ بمباری کریں گے۔ تہران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ منجمد فنڈز کا معاملہ تہران کے رویے سے مشروط۔ صدر ٹرمپ کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور قطر میں شراکت داروں سے اظہار تشکر۔ بولے پاکستان نے معاہدے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ مفاہمت کی یادداشت پر امریکہ اور ایران کے صدور دستخط کر سکتے ہیں۔ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس بارے میں مشاورت جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اعلیٰ حکام کل صبح سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی قیادت میں ابتدائی وفد پہنچ گیا۔ مجھے معاہدہ پسند نہ آیا تو ایران پر بمباری شروع کر دیں گے۔ عام کی دہلیز پر ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ G7 سمٹ کی سائیڈ لائن پر مصری ہم منصب کے ساتھ میڈیا گفتگو میں امریکی صدر کا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ۔ مفاہمتی یادداشت غیر حتمی قرار دے دی۔ کہا امید ہے ایران MOU کی پاسداری کرے گا، عمل نہ ہوا تو کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تہران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز مکمل کھل جائے گی، تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما پر ایران کو اربوں ڈالرز دینے کا الزام۔ پاکستان امن کا میزبان، صرف 2 دن بعد نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر برگن اسٹاک میں جمعے کو دستخط ہوں گے۔ تقریب کی تیاریاں جاری۔ سوئس حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سیاحتی مقام کی فضائی حدود بھی عارضی طور پر بند رہے گی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے JD وینس شرکت کریں گے۔ امریکہ کا اسرائیل کو معاہدے کا مسودہ دکھانے سے انکار۔ تل ابیب نے متن دکھانے کی استدعا کی۔ چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے ننھی ہانیہ کی المناک موت۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دل دہلا دیے۔ 9 برس کی معصوم بچی کا جسم گولیوں سے چھلنی، 11 نشان ملے۔ گولی لگنے سے دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، دایاں پھیپھڑا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنت بھی شدید متاثر۔ رپورٹ کے مطابق بچی کی موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے متفرق درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کو مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت۔ CCD اہلکار نے ڈاکوؤں کے شبے میں فائرنگ کی، جس سے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی کی جان چلی گئی۔ CCD اہلکار اور بچی کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں تھا، ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ کہا سانحہ چکوال کی رپورٹ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا اندوناک واقعے پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ویسے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے مینٹین کرنا ہے ڈیکورم ہاؤس میں، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا کہ ہاؤس میں ڈیکورم نہیں تھا۔ آپ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن آپ حکم کر رہے ہیں، شاید آپ نے سسپینڈ کر دیا یہ رول کہ یہ شور ہنگامہ کر سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں۔ میں نے سر کوئی رول سسپینڈ نہیں کیا، لیکن ان کی سیریسنس دیکھیں، اس وقت یہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر۔ ترقیاتی امور کے لیے 720 ارب روپے رکھے گئے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے خصوصی قانون سازی کا فیصلہ۔ متوسط طبقے کے لیے رعایتی سولر فائنانسنگ پروگرام لانے کا اعلان۔ پبلک ٹرانسپورٹ مضبوط بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور واک آؤٹ۔ علی خورشیدی نے کہا سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، بجٹ کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بلوچستان کا بجٹ اجلاس جاری۔ نئے مالی سال کا 1,089 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کابینہ نے پہلے بجٹ دستاویز کی منظوری دی۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 797 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے کہا تاریخ میں پہلی بار آٹومیشن بجٹ تشکیل دیا گیا۔ 2 سال میں 6,000 اسکیمز مکمل کی گئی۔
पंजाब में गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वफाक को पैसे देने की वजह से मुश्किल बजट था। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। कई साल से जारी 870 स्कीम्स को खत्म किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका। अमेरिका ईरानी तेल की तिजारत पर पाबंदियां नहीं लगाएगा। मुज़ाकरात के दौरान तेहरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। ब्लूमबर्ग अमेरिका ईरान मुफाहिमती याददाश्त की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। 2 माह की नाकाबंदी के बाद ईरानी तेल की तरसील शुरू। 5 ईरानी जहाज मंजिल की जानिब रवां दवा। अहम पेशरफ्त के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी क्रूड 78.68, अमरीकी खाम तेल 75.59 डॉलर फी बैरल पर आ गया। नेटो ने अपने हुर्मुज खोलना बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा सिर्फ 2 रोज बाद। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जनेवा के बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस शिरकत करेंगे। अमेरिका का इसराइल को मुआहदे का मुस्तविदा दिखाने से इनकार। मतन दिखाने की इस्तदा सिर्फ ब्रीफिंग पर निमटा दी। ईरान के साथ मुफाहिमत की यादाश्त हतमी नहीं। मुआहिदा पसंद न आया तो फिर बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। मिस्री हममनसब से गुफ्तगू में कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान के साथ अहम डील की पायदार मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का ईरान डील से मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममनसब से राबता। मुफाहिमती याददाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली जारिहत रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हममनसब को भी फ़ोन। बाहिमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तानी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते। अमरीका ईरान मुफाहिमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहिमती याददाश्त पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक। एक्स पैगाम में इसहाक डार का 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी भाइयों के महफूज ट्रांजिट और जल्द वापसी को यकीनी बना रहे हैं। G7 समिट में अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। आबना हुर्मुज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाजरानी पर जोर। जामी और मजबूत सिफारती मुआहदे की हिमायत का आज़म। तवानाई सप्लाई की मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाक़ाई ख़तरात को भी मद्देनज़र रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। यूक्रेन की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत अव्वलीन तरजीह करार। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का चर्चा। सिफारती कामयाबी का एतराफ़। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन का इजहार तशक्कुर। बरतानवी हुकूमत भी मुतरफ। सऊदी काबीना का अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों की तारीफ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। हर धर्म इसराइल की अमेरिका ईरान मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशें। जनूबी लबनान में बमबारी ना रुकी। इसराइली हमले बंद ना हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की वार्निंग। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का जनूबी लबनान से इसराइली फौजें वापस बुलाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सेहूनी फौज ने लबनानी शहरियों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर किया। ये जंगी जुर्म है। इसराइल को फौरी तौर पर लबनान से निकल जाना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। कहा ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें, ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल हो गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने अनथक मेहनत पर कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। KP हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला, शौकत यूसुफजई ने तस्दीक कर दी। कहा 3 माह का बजट लाना चाहते थे, कानूनी सुकम आड़े आ गई। माहिरीन ने कहा ऐसा किया तो मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कौमी असम्बली क़यामा कमेटी बराए खजाना में FBR माफिया करार। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा हकीकी माफिया तो FBR ही है। दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FBR ही माफिया है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ की गरज बरस, इदारे का सरबरा हूँ, कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल लाजवाब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात। इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर खारजा ने अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सुपरस्टार की सुपर डुपर परफॉर्मेंस, मेसी ने तारीख पलट दी। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर ने करियर का 200वां मैच यादगार बना लिया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले सबसे उम्र रसीदा प्लेयर बन गए। मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉल एम्बापे के 2 गोल फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्ली हॉलैंड का शानदार वर्ल्ड कप डेब्यू, 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स की मशक़ें, तैयारियां मुकम्मल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।